On the evening of February 15, the King Palace in Edison, New Jersey served as the venue for a momentous gathering of esteemed personalities from the realms of cinema and music. The occasion was the press conference unveiling the USA tour of Umrao Jaan, a musical, meticulously organized by Touchdown Media. The event also saw the participation of renowned music composer Salim Sulaiman, who joined the conference live via Zoom from India. The ambience of the evening was further elevated by the enchanting performance of Shweta Pandit, whose rendition of Dilcheez Hai Kya captivated the audience. Adding to the allure was Neetu Chandra's grand entrance, adorned in a resplendent white anarkali embellished with ghungroos. Guiding the proceedings with finesse was Faridun Shahryar, whose familial ties to the classic film Umrao Jaan lent a nostalgic charm to the event, given his father's contribution as a lyricist to the movie. Meet Shah, accompanied by director Rajiv Goswami, unveiled a spectacular video showcasing Neetu and her dance troupe performing barefoot amidst sub-freezing temperatures at Times Square. With such captivating highlights and promises of homage to the timeless classic based on the novel by Mirza Hari Ruswa, the USA tour of Umrao Jaan is set to enthrall audiences and leave an indelible mark on their hearts. Enjoy the highlights. दिलचीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिलचीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। Hi, this is Raj from King Palace. It's an honor for me to host such a big event, which is going to start from Delhi all the way from India to US. I really want to thank Meet Shah from the bottom of my heart and the rest of the team for hosting an event at our King Palace. Hi, this is Bharat Bhatia, promoter of Bollywood artist, and it is indeed my pleasure and privilege to be a part of this wonderful musical play called Umrao Jaan. Umrao Jaan is a very, very popular name of since I think 1981 Vika started, and now it is coming to USA, and it is none other than Neetu Chandra, who is a multi-talented actress. She is performing here, and I'm so very excited to see all the praise and media over here. To see and give support for this wonderful musical play Umrao Jaan. आप लोगों ने I think already buzz जो create किया है मीत ने कल टाइम स्क्वायर पे, I think मेरे ख्याल से आप लोग सब उसके बारे में जान चुके होंगे और अभी बहुत जल्द बहुत कुछ और भी जानेंगे उसके बारे में। तो मीत शाह, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमराव जान नॉर्थ अमेरिका टूर। मीत शाह, I would like to thank you everyone to be here at the press conference. We are doing Umrao Jaan Ada America tour, and we are doing in 8 cities. We are doing, first we starting after Eid in New Jersey. Second we are doing in Ohio, Columbus. Third we are doing in Dallas. Fourth we are doing in Raleigh. Fifth is in Boston. Sixth Chicago. Seventh Houston, and eighth we are doing in last finale in Washington DC. बहुत से टूर्स होते रहते हैं, लेकिन शायद इस तरीके का टूर मुझे लगता है कि बहुत ही रेयरली कोई सामने आता है और एकदम इंडिविजुअल तरीके से है, अपने आप से एवरीथिंग हैज बीन पुट टुगेदर एंड मीत हैज वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर दिस। जुबानी दावे तो बहुत लोग करते रहते हैं, जुनू के काम को करके दिखाना होता है। पोखटी रोड तो ऐसा कहा जाता है जैसे अहमदाबाद है, सही है कि गलत है? सही बात है। We want every Gujarati support, everybody support in Umrao Jaan Ada, and New Jersey एक ऐसा स्टेट है जहाँ से शुरुआत करते हैं, उसकी हवा पूरे यूएस नहीं पूरे वर्ल्ड में भी। बहुत बहुत मुबारक आपको। मुझे बताएं कि कैसे आपने और मीत ने डिसाइड किया उमराव जान को नॉर्थ अमेरिका में लेके आने के लिए। मुझे लगता है कि तो दुनिया भर में जाएगा। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और मीत भाई ऑफ कोर्स उनके बारे में क्या कहें, इनकी शख्सियत जो है वो आप सबको पता ही है, यहाँ के ये है। सो उमराव जान बेसिकली आई वाज थॉरली इंस्पायर्ड बाय द नॉवेल written by Mirza Hari Ruswa साहब,
और इसके जो गाने हैं ये बहुत बड़ा मतलब इंस्पिरेशन रहा है। लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं और जो यहाँ पर बैठे हैं इनके बारे में इनका इंट्रोडक्शन क्या ही दूँगा। जो लिरिक्स हैं उनके और जो लिखा गया है और जो खयाम साहब का म्यूज़िक है, तो बेसिकली म्यूज़िकल के लिए सबसे बड़ा एक इंस्पिरेशन होता है म्यूज़िक। तो दिल चीज़ क्या है और इतने लेजेंडरी गाने थे, तो इसने मुझे इंस्पायर किया कि एक क्यों ना इसको लाइव स्टेज पे लाया जाए। ये फर्स्ट इंडिया का म्यूजिकल है जो एक नॉवेल पे बेस्ड है और ये वेस्ट एंड में भी जो है ये हमने इसको लॉन्च किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सो दिस इज द ओनली म्यूजिकल बाय द वे, जैसे ये वेस्टर्न म्यूजिकल्स होते हैं इसी तरह से इंडिया का पहला म्यूजिकल है जो ये नॉवेल पे बेस्ड है। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। उमराव जान है वो लव स्टोरी ऑफ कोर्स है और बहुत ही खूबसूरत गाने हैं और हम सब परफॉर्म करेंगे आप सबके लिए। लेकिन एक आज़ादी का एंगल भी है, कैसे कि अगर कहते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो क्या लड़कियां भी आज़ाद हुई, ये क्वेश्चन है एक सबके लिए। और उस वक्त भी उमराव जान यही सोचती थी कि खाना अम्मी पूछती थी उनसे कि भाई जाओ
बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, हो सकता है इस सदी में आज़ादी मिल जाए। तो उनका अक्सर ये सवाल होता था कि आज़ादी तो मिल जाएगी, क्या लड़कियों को भी मिलेगी? क्या बात है, जोरदार तालियां। वो आप जो आपका मखसूस अंदाज है उस अंदाज में सुनाना चाहेंगे? वो डायलॉग अगर मोनोलॉग अगर दो लाइन दो तीन आपको कोई मना कर सकता है? जरूर। तो ये एक छोटा सा मोनोलॉग है जो मुझे लगता है कि उस वक्त भी हम ऐसा ही सोचते थे और आज भी हम ऐसा ही सोचते हैं। आज हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे शी इज़ गोइंग आउट अलोन, व्हाई आर यू गोइंग आउट अलोन? अगर आप मम्मी के साथ जाए तो बोले माँ बेटी अकेले जाते हैं, चाची लोग के साथ जब बोलो माँ बेटी का नहीं पड़ता है इसलिए लड़के जाए, कॉफ़ी पीने चले जाओ किसी के साथ बोलेंगे व्हाट इज़ ब्रोइंग देयर? सो एवरी टाइम देयर इज़ अ क्वेश्चन एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन राइट आंसर टू make everybody happy कि ठीक है, you know, and society has a definition of a female, of a girl, और अगर आप उसमें नहीं उतरते हैं तो आप वो सुशील कन्या नहीं कहलाते। So I think this is a monologue which I really want to, and I love it, मुझे लगता है बहुत ही मेरे करीब है। उमराव जान समझिए 17-18 साल की हैं और उस वक्त खाना मम्मी उनसे बोलती हैं कि उमराव जाओ बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, हो सकता है इस सदी में आज़ादी मिल जाए। तो उमराव जान कहती हैं कि खाना मम्मी आज़ादी यानी लड़कियों को भी आज़ादी? तो कहती है अरे और कितना आज़ाद होना चाहती हो, मर्जी का खाती हो पहनती हो, कोई रोक टोक नहीं है, और कितना आज़ाद होना चाहती हो? तो उमराव जान कहती हैं खाना मम्मी सोचती हूँ आज़ादी यानी बेपर्दा पर बदनाम नहीं, आज़ाद ख्याल पर बाजारू नहीं, बेतकल्लुफ पर दस्तयाब नहीं। हमें ऐसा लगता है जैसे जन्नत हूरों से होती है और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान जन्नत में तब्दील हो जाएगा। लड़कियां बेखौफ झरनों की तरह फूटेंगी और लहरों की तरह इटलाती जहाँ मन चाहेगा वहाँ जाएंगी, फिर भाप बनकर उठेंगी, मन चाहा बादल बनेगी, कहीं बरसेगी तो कहीं रूई के फाहे की तरह हल्के से बैठ जाएंगी, फिर बादल बनकर उठेंगी और ओस बनकर उड़ जाएंगी। सबब ये कि लड़कियां जो चाहेंगी करेंगी, जहां मन चाहेगा वहां जाएंगी, बाजार भी जाएंगी ना तो खरीदने, खुद बिकने नहीं, और अगर नाचेंगी भी तो तवाइफ नहीं कहलाएंगी, लड़कियां लड़कियां कहलाएंगी, न पूजी जाएंगी और ना ही जलील की जाएंगी, वो जैसी है वैसी ही रहने दी जाएंगी। है ना खानम जान? आज़ाद हिंदुस्तान में होगा ना ऐसा? आमीन आमीन आमीन। खयाम साहब बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर थे और जिस तरीके का काम उन्होंने इसमें किया है, उन्होंने बहुत बड़े फिल्मों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये उनकी आई थिंक सबसे बड़ी फिल्म है। आशा भोसले जी से उन्होंने एक स्केल नीचे गवाया जो कि पहले किसी ने कभी नहीं करवाया था, एंड rest is history as all of us know. How much of a challenging aspect was it for you guys? Because खयाम और आशा भोसले की जमीन में जाना बहुत मुश्किल, बहुत जिगरा चाहिए उसकी। You know, the toughest or most challenging thing for us was कि इसे जब हम recreate कर रहे थे, the most important thing we had to keep in mind was कि इसकी जो authenticity है उसे कैसे बरकरार रखें। You know, रिक्रिएटिंग आजकल यहाँ पर इंडियन सिनेमा में बहुत सारे गाने रिक्रिएट होते हैं आज की स्टाइल पे या जो भी है। What we were trying to recreate was the original authentic songs, क्योंकि हमें ये करना था कि we first of all it was an homage to खयाम साहब, a tribute to him and his versatility as a composer, जो स्टाइल से उन्होंने सब कुछ जिस अरेंजमेंट और जो कंपोजिशन थी, we wanted to keep it intact and in its original form। और सबसे बड़ी चैलेंज वही थी कि वो उसे कैसे करें and to be able to compose a song in the same genre as Khayyam Saab's composition was a very very challenging। Okay, Salim has joined us as well। Salim, बहुत स्वागत आपका। This is Faridun here in New Jersey। Good morning। सलीम कैसे हैं आप?
ठीक हूँ. Sorry, I'm joining very late. But as you know, it's very early in the morning. We understand that, and thank you very much. So जो मैंने सवाल सलेमान से पहले पूछा था, सलीम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, खयाम साहब और आशा भोसले जी की ज़मीन में उतरना कितना बड़ा चैलेंज था, especially that you guys have consciously stayed away from recreations in your career. जी, what a great question. पहली बात तो we were very fortunate that we were blessed by खयाम साहब. You know, जब हमने उनसे पूछा कि हम ये प्रोजेक्ट करें तो बहुत खुशी. और he was there for the opening night in Mumbai. और जब एक ऐसे लेजेंडरी कंपोजर का आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है का काम शुरू करने के बाद, तो हिम्मत बहुत बढ़ती है. और ये हिम्मत आज भी हमें वो याद है जब खयाम साहब ने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों के अलावा और कोई इससे कर सकता. तो ये जानकर और ये सुनकर वो उनकी आवाज आज भी गूंज रही है. हमारे कानों में आज भी गूंज रही है, हमारे दिलों में आज भी गूंज रही है. So that was a very big thing when he said. Asha ji, I remember when we had invited her for the premiere, उनको बहुत खुशी हुई. आशा जी को बहुत ही. So the answer to your question is, it was a challenge obviously because ये जो गाने हैं वो ऐसे गाने हैं कि इनको attempt करना would be something wrong. But fortunately because we got the blessings of both of them, Khayyam Sahab and Asha ji. It was हिम्मत बढ़ गई थी. And then Talat Aziz Bhai was also part of the premiere when we had the opening night in Mumbai. Talat Bhai had sung Zindagi Jab Bhi Teri Basm Mein, the very famous song in his career, and it was one of his first songs, one of his opening songs. तो ये सब इन लोगों के साथ में जुड़ना और उमरा उजान एक ऐसी एल्बम थी जो हम लोग बचपन से सुनते थे, घर में. So it was a dream come true. And it was दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए. Fantastic. जोरदार तालियां USA. Right here.